جی مولانا شہادت رشیدی صاحب بول رہے ہیں. ہاں بولو کیا ہوا. جی جی بولیں کیا بول رہے تھے. گرمی بہت لگ رہی تھی. جی بولیں مولانا شہادت رشیدی صاحب. ارے میں یہ بول رہا تھا کہ الصلاۃ والسلام کہاں پہ لکھا ہوا ہے اذان سے پہلے. ارے یار اس کو چھوڑو, ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے آپ سے, ٹھیک ہے. ہمارا اختلاف اس پہ ہے نا, دین کے اندر میں کیوں بڑھایا یہ مجھے بتاؤ. اچھا کہاں اچھا, پہ لکھا ہوا. ہمارا اختلاف یہ ہے آپ سے کہ آپ نے اپنی کتاب میں سنیے آپ کے مجھے یہ بتاؤ اس کا مولانا صاحب ایسے بات نہیں ہوتی ہے. اس کا جواب دینے کے بعد ہی آگے بڑھو. اس کا جواب چلیے تو آپ مجھے یہ دکھا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کہاں فرمایا ہے, اس کو ناجائز کہاں لکھا ہے, بدعت کہاں لکھا ہے. چلیے کسی ایک حدیث سے ثابت کر دیجئے, قرآن پاک کی کسی ایک آیت سے ثابت کر دیجئے آپ. چلیے کیجئے, ناجائز کر دیجئے آپ. ناجائز مولانا صاحب تسلی سے بات کیجئے, آپ اس کو ناجائز ثابت کیجئے. بتائیے کہ ایسا کہنا ناجائز ہے, حرام ہے, بدعت ہے, شرک ہے, جو بھی ہے آپ قانون لگائیے. مجھے تم یہ بتاؤ, حدیث پڑھ کے بتاؤ مجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ مسلمان کو کافر کہو. حدیث پڑھ کے بتاؤ. پڑھیں پڑھ کے بتاؤ حدیث. دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابا واستکبر وکان من الکافرین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون. جاہل ہوگے تم, جاہل ہوگے. قرآن نہیں ہے یہ, میں نے قرآن نہیں پڑھا. نہیں تم بتاؤ یہ قرآن نہیں پڑھا میں نے. پہلے بات جاہل کہیں کا. مولانا صاحب دیکھیے ایسے بات مت کیجیے. مولانا صاحب کافر ہے. پہلی بات مولانا صاحب ایسے بات مت کیجیے. ہو تم اپنے زبان سے بولے گا کیونکہ یہ آیت تیرا باپ کے لیے نازل نہیں ہوا ہے, ہم تو آپ کے انتظار میں. دوسرے آدمی کے لیے نازل ہوا یہ آیت. تم کہاں پہ استعمال کرو جاہل کا, یا قرآن کو رد و بدل کرو. نعوذ باللہ من ذالک. آپ اپنے آپ کو چلو مسلمان ثابت کر دو. چلو میں تو کہہ رہا ہوں مسلمان تو ہمیں 1000 جگہ ثابت کر, مسلم اخل مسلم. اچھا چلیے مسلمان کی تعریف کیجیے کہ تم کو یہاں ثابت کرو. تم یہ بھی نہیں بتا سکتے. مسلمان کی تعریف کیجیے. مسلمان کی تعریف ہے کیا, کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں سر؟ جس نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر, نبی پر, یہ سب چیزیں, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, قیامت پر, اس کو مسلمان کہتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, اس کو مسلمان کہتے ہیں. اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. اور کچھ کہنا ہے یا بس میں اپنی بات کہوں؟ نہیں تم اپنی بات نہیں کہو. مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ, تم جو بولے الصلاۃ والسلام ثابت نہیں ہے, تم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا تھا کھڑے ہو کے اتنا جائز نہیں ہے. چلیے اور کچھ کہنا ہے اس کے آگے یا میں اپنی بات کہوں؟ نہیں تم اپنی بات کہہ نہیں سکتے. پہلے اس کا سوال کا جواب مجھے دو, تب پھر آگے بڑھیں. ہاں مولانا صاحب ابھی جو آپ نے یہ کہا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے اور کچھ نہیں. ابھی جو آپ نے کہا ہے کہ مسلمان کی تعریف, تو تم نے آپ نے جو ہے کر کے دکھائی نہیں. ارے مسلمان کی تعریف تم بعد میں بحث کرنا, میرے کو پہلے سوال کا جواب دے. چلیے آپ نے کہا, چلیے آپ نے مسلمان کی جو ہے پہچان بتائیے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے جو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا, پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ذرہ برابر توہین کی, گستاخی کی, وہ مسلمان ہے کافر؟ ادھر سن لے, پہلے وہ بات کرنی ہے نا, دوسری جگہ بات کریں گے. دوسری بار فون کرو تب میں تم سے بات کروں گا. پہلے مجھے اس سوال کا جواب دو مجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب حکم دیا کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام پڑھو. اس کا جواب دو. اور پہلے مجھے یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے وہ مومن ہے یا کافر؟ وہ تم کو بحث کرنا ہے نا, بولو. اور مدعا کیا ہے, مدعا کیا, سمجھ نہیں رہے ہو آپ بات کو؟ نہیں, میرا سوال کا پہلے جواب دو. بس میں یہ چاہتا ہوں, میں آگے بڑھنے نہیں چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں پہلے اس کا جواب دو, تب پھر آگے بحث ہوتی رہے گی. جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں. اچھا اس کا جواب مجھے چاہیے ابھی اسی وقت میں. ہاں بالکل. یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مومن ہے یا کافر؟ نہیں جا رہا, میں تیرے کو بول رہا ہوں اس کا بات کرنا ہے نا, بعد میں کروں گا. پہلے میرے سوال کا جواب تو دے. ارے یار پہلے بتاؤ نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مومن ہے یا کافر؟ ارے وہ مومن ہے کافر ہے, وہ فتوا لگاؤں نا, وہ تیرے کو بعد میں لگا دیتا ہوں. تم مجھے پہلے اس کا جواب. ارے یار بتاؤ نا یار, کیوں ڈر کیوں رہے ہو یار؟ جانور کی طرح آگے کیوں بڑھا؟ نہیں, میں سوال پہلے کیا ہوں, میرا سوال کا پہلے جواب حل لا کے دکھاؤ, حدیث سے ثابت کراؤ. جی وہ سب انشاءاللہ ثابت کریں گے آپ کے. پہلے پیش کرو, تب اس کے بعد تم مجھے سوال کرنا, تب میں تم کو بتاؤں گا. پہلے تو میرا سوال کا جواب دے. پہلے
जाहिल की तरह बात कर रहा। पहले सवाल का जवाब, मैं सवाल जो किया हूँ हटवा दिए जरा पीछे, मुझे इसका जवाब चाहिए। हाँ बोला मौलाना साहब। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं जो सवाल किया हूँ इसका जवाब दीजिए, तब उसके बाद आप अपना सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। नहीं आगे और है पीछे कोई इसके गाड़ी? अब जवाब नहीं बन पड़ा है क्या? हटियो जरा, इधर से हटियो जरा। अरे ये मूली का बोझ हटेगा। क्या हुआ मेरे दोस्त? जवाब दे रहे जी मौलाना शहादत रशीदी साहब, आपने जो तारीफ की है मुझे जवाब मुसलमान की, तो मुसलमान की जरा दोबारा से तारीफ कर दें यार। वो ना गाड़ी हटाने बचाने के चक्कर में फोन कट गया। हाँ वो तारीफ करना तेरे को और दूसरे ऑडियो में करना, लेकिन इसमें तुम मुझे जवाब दो। जी मौलाना साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दे, क्या फिर वो मोमिन रहता है? हाँ तेरे को इसका लेना है ना, मेरा सवाल का पहले जवाब दो ना यार। अरे मौलाना साहब, मैं तो तुम लोगों में से खुद निकला हूँ 15 साल से ज्यादा रह के। तुमको मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए या मैं आपके सवाल का जवाब? पर वो तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। तुम मुर्तद हो गए, वो छोड़ो, उससे मुझे कुछ देना नहीं है, लेकिन मुझे सवाल। अच्छा, देवबंदी लोग मुसलमान हैं? तुम मुझे उसका सवाल। देवबंदी लोग मुसलमान हैं? मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का है। अच्छा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना ईमान है कि कुफ्र है? थप्पड़ मार दूंगा तेरे को, पढ़ने के लिए नहीं आता है। मौलवी साहब ये बात करने का आपका अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है? अच्छा तरीका नहीं, तू बोल मत, उसमें तो एराब लगाया है, एराब से मुराद क्या होता है वो समझ में नहीं आता तेरे को। अच्छा मौलवी साहब हैं या मुफ्ती साहब हैं? मौलाना शहादत रशीदी साहब, आप मुफ्ती है या मौलाना है? तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तू बहस मत कर, तेरे को मैं जो कह रहा हूँ वो कर। मौलाना साहब, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, देखिए आगे बात मत पहुँचा, पहले मेरा सवाल का जवाब दे, फिर आगे बोलना। तो मौलाना साहब, आपसे मैं कब से कह रहा हूँ, जो मुसलमान होके हुजूर सल्लल्लाहु, मैं पहले जो कह रहा हूँ उसका जवाब दे, तब मैं तेरा सुनूंगा। मौलाना साहब कैसे मौलाना साहब हैं यार? एक आम इंसान को एक आम इंसान से बात नहीं कर पा रहे हैं आप, एक आम इंसान से सही से बात नहीं कर रहे हैं। तू भाग रहा सवाल। मैं कहाँ भाग रहा हूँ मौलाना साहब, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, क्या वो फिर भी मोमिन रहता है? वो मोमिन नहीं। आपने कहा था कि मुसलमान की पहचान ये है कि जिसने कलमा पढ़ा, अल्लाह को माना, अल्लाह के रसूल को माना, कयामत के दिन पर ईमान लाया। आपने ये सब जो है पहचाने बताई। मैंने आपसे कहा क्या कलमा पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे या जरूरियात दिन में से किसी चीज का इनकार? मुफ्ती साहब, अच्छा ये है देवबंदी आलिमों का इल्म। क्या यार, लानत है तुम्हारे इल्म पे, लानत है यार, तुम्हारी अकल पे लानत है यार। एक आम इंसान से बात नहीं कर पा रहे मौलाना रशीदी साहब। तुम बेवकूफ गधे कहीं का, नूर रजा, तेरे को कुछ नहीं आता। अरे यार, ये आपकी जबान से अच्छा नहीं लग रहा मौलाना साहब। आगे कुछ नहीं बोल, सवाल का जवाब दे, फिर आगे बकना। पहले सवाल का जवाब दे, तब तुमको आगे। अच्छा क्या सवाल है आपका? मैं पूछ रहा हूँ, अस्सलातु वस्सलाम ये आजान से पहले देने के लिए, पढ़ने के लिए किसने हुक्म दिया? अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेड़ पौधे पहाड़ समंदर ये सब जो है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो क्या ये भी गलत कहते हैं? ये लिखा हुआ है कि आजान के टाइम में पढ़ना, और अभी तू नहीं पढ़ सकता था। अच्छा सुनिए अभी नहीं पढ़ सकते तू, पहले आजान के टाइम में पढ़ना जरूरी है। सुने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ये क्या है? कुरान है या कुछ और है? ये नहीं बोलने का, कुरान है कुछ और है? ये देख, ये मौलाना साहब बताइए ना, कुरान है या कुछ और है? बता रहा हूँ साला जानवर, सुनता नहीं बकरा सिर्फ। यार मौलाना साहब ये जबान अच्छी नहीं लग रही, मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, आप कैसे बात कर रहे हैं? सुन मेरी बात, तू बहुत बदतमीजी कर रहा है, पहले मेरी बात। यार मैंने क्या बदतमीजी कर दी मौलाना साहब? मुझे ये बता मौलाना साहब, मैंने बदतमीजी क्या की आपसे? बदतमीजी ये किया है कि तुम काफिर की तरह और मुनाफिक की तरह भागता है। अरे यार मौलाना साहब, आपने पूछा कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहना कहाँ से जायज है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप नाजायज इसको साबित कर दीजिए।
पर मैंने आप कुरान पाक की आयत पढ़ी है। सुनिए मौलाना साहब, सुनता क्यों? सुन फिर सुन, मैं साबित कर रहा हूँ तेरे को। ये जो लिखा हुआ है वो आयत जो तूने पढ़ा, ये लिखा हुआ इस बात की अलामत नहीं है कि आजान से पहले पढ़ो। ये मुझे ये साबित, मुझे ये चाहिए और मुझे और कोई दूसरी दलील नहीं चाहिए। मुझे ये दलील दिखाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हुक्म दिया कि आजान के लिए खड़े हो, उसी वक्त पढ़ो और पूरे दिन इधर उधर घुमा। कुरान पाक में मुतलक है ना, मुतलक हुक्म है ना। अब कोई बंदा नमाज से पहले पढ़े या नमाज के बाद में पढ़े, आजान से पहले पढ़े या आजान के बाद में पढ़े, सोते टाइम पढ़े या जागते टाइम पढ़े, कोई कैद है? कहीं मना है मौलाना साहब? इसीलिए बोला मैं तेरे को, तुम बदतमीज की तरह बात करते हो। मौलाना साहब मैंने तो आपको बदतमीज ही नहीं बोला। अंदर में अक्ल शोर नहीं है, बदतमीज। मौलाना साहब, मौलाना मैं आपको यार मौलाना कर रहा हूँ, आप बदतमीजी करे चले जा रहे हैं। जो सवाल क्यों मौलाना साहब? सवाल का जवाब दो मौलाना साहब। भागने का कोशिश करो, पहले सवाल का जवाब फिर आगे। ये नहीं कि ये सवाल यही। मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ये क्या कहा? ये कुरान का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अल्लाह अपने महबूब पर, अल्लाह उसके फरिश्ते दरूद व सलाम भेजते हैं। और मुसलमानों को, ईमान वालों को भी हुक्म हुआ कि तुम भी खूब मेरे महबूब पर दरूद व सलाम भेजो। मुतलक बयान है, मुतलक हुक्म है। अब मौलाना साहब सुनिए ना बात को, मौलाना साहब सुनिए ना बात को। क्यों बेइज्जती करा रहे हैं देवबंदी मौलवियों की? तुम्हारी तो बेइज्जती पूरी। अरे क्यों देवबंदी मौलवियों की बेइज्जती करा रहे हैं यार मौलवी साहब? मैं तो यही बताना चाह रहा हूँ कि बरेलवी जो सवाल का जवाब भी नहीं देता, भागता किस तरह, ये देखो। इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि सवाल का जवाब तभी से हो रहा नहीं, तुम भाग रहे हो इधर उधर, वो भागता नहीं इधर। यहाँ तुम काम नहीं करा, पूरे कर करके जाके लूंगा। अस्सलातु वस्सलाम जो लिखा हुआ लफ्ज़ या अय्युहन नबिय्यु, वो तुम्हारे लिए नहीं लिखा हुआ कि आजान के वक्त में, हमेशा के लिए लिखा हुआ है। मुतलक है, वो कभी पढ़ सकता है। लेकिन मुझे ये साबित कराओ, तुम ये दिखाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील आजान लेके आए थे, क्या वो अस्सलातु वस्सलाम पढ़ के आजान किए थे? ये साबित कराओ। इसके बाद अब कुछ कहना है या मैं अपनी बात कहूँ? नहीं, तुम अपनी बात अभी नहीं कह सकते, इसका जवाब जब तक नहीं दोगे। अरे बस जवाब तो दे रहा हूँ, आप क्यों जवाब नहीं? वो जो मुतलक वाले आए जहाँ तुम्हारे कोई फिट नहीं होता। तुम ये दिखाओ कि जिब्रील जब आए थे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जाओ इस तरह आजान दिखाओ, और उसके बाद जब ये सहाबी ने आजान दिया, और ये किसी सहाबी से मुझे बताओ, ये सहाबी ने आजान देने से पहले अस्सलातु वस्सलाम पढ़ा या जिब्रील लेके आया दूसरे किसी ने पढ़ाओ, ये मुझे दिखाओ। आपका सवाल पूरा हुआ या मैं अब आपके सवाल का जवाब दूं? हाँ, ये बारे में जिब्रील से या सहाबी से, ये दो चीज से दिखाऊंगी। आपका सवाल पूरा हुआ है, जवाब दूं? आपने सवाल नहीं करने का, ये मैं बोला ना, इसी के अंदर में रह के जवाब दे, इसी का बस, इसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका सवाल पूरा हुआ क्या? और कुछ कहना है? और कुछ नहीं कहना है, इसका जवाब चाहिए। कुछ नहीं कहना है? क्लियर हो गया? हाँ, जवाब दें। मुझे आप ये बताइए, ये कानून कहाँ है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने काम किया? नहीं बताऊंगा, ये सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं मुफ्ती साहब, मौलाना साहब सुनेंगे नहीं? मैं तो खामोश रहा, आप बोले तो मैं तो खामोश रहा। खामोशी की बात मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं सवाल के मुद्दे पर तो जब मेरी बात पूरी हो जाए, जब मेरी बात पूरी हो जाए तो आप बोलिएगा। तेरी बात पूरी की बात सवाल का पैदा नहीं, तो मैं जो सवाल क्या हूँ उसका जवाब। घबरा रहे हैं मौलाना साहब, घबरा रहे हैं, घबरा रहे हैं आप। सवाल का जवाब नहीं बन रहा, बेवकूफ है, घबरा रहे हैं आप, घबरा रहे हैं आप, बदतमीजी की तरह बात कर रहे हो। और यूट्यूब में यार मैं मौलाना साहब आपको कब बदतमीज बोला? मैं तेरे को अपन चैलेंज, मौलाना साहब मैं कब आपको बदतमीज बोला? नहीं दे सकता तू, क्या तेरा पूरे आला हजरत का जो है ना मानने वाला, किसी का मान इतनी है, दूध नहीं पिलाया कि वो इस सवाल का जवाब दे सकता है? नहीं दे सकता। मैं तो दे रहा हूँ आपको, आप सुन ही कहाँ रहे हैं? तुम वो उधर उधर की बात नहीं, सीधे से बोले जिब्रील आया तो उस वक्त पढ़ा, वो दिखाओ मुझे ये दिखाओ, ऐसे चाहिए जो आपका सवाल पूरा हुआ? हाँ, सवाल तो पूरा है, इसके इसी के अंदर में रह के बात कर। मुझे ये कानून दिखाइए जो काम जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नहीं किया वो कोई दूसरा मुसलमान भी नहीं कर सकता। बेवकूफ, फिर वही आप मुझे ये बताओ कि अल्लाह के, आप इस तरह बोलोगे ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम किए हैं वो तुमको भी करना चाहिए ना? बोलो हाँ, करना चाहिए ना? तुमको खुद नहीं पता कि तुम सवाल क्या कर रहे हो और तुमको सवाल के जवाब में क्या लेना है?
اب میں तुमको खुद नहीं मालूम मौलाना साहब, और मुझे कह रहे हैं कि बदतमीजी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बात को मुझे कानून दिखा दीजिए कि जो काम साहब इकराम ने नहीं किया हो वो दूसरा मुसलमान नहीं कर सकता, और करेगा तो वो मुशरिक होगा, काफिर होगा, या बदमजहब होगा, बददीन होगा, कौन होगा? फतवा लगाइए आप। दिलों के अंदर में मोहर लग गया, तू सवाल से हटेगा, मुझे मालूम था मुद्दे से हट के बात करेगा, मुझे सब मालूम है, इसीलिए कि तुम्हारी खासियत यही है जो मुद्दे पे बहस होती है। मौलाना साहब मैं तो मुद्दे पर रह के ही बात कर रहा हूँ आपसे, पर आप बोले चले जा रहे हैं। जवाब कह रहे हैं आप? जवाब दे। हाँ सुनिए मौलाना साहब, मौलाना शहादत रशीदी साहब, देवबंदियों को आप इतना जलील मत कीजिए, ठीक है? उनकी कुछ इज्जत बचा के रखिए आप। बरेलवियों को जलील मत कर, तेरे अंदर में कुछ नहीं है। मैं बोला तेरे को शुरू में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इज्जत वाला हूँ, तमाम मुसलमान इज्जत वाले हैं, तमाम अहले सुन्नत वाले इज्जत वाले हैं। तुम्हारा पूरा खानदान जलील और रुसवा है, तू भी जलील और रुसवा है। तेरे अंदर में आपका अंदाज बता रहा है मौलाना साहब, आपका अंदाज बता रहा है मौलाना साहब, आप बौखलाए हुए हैं। 5 दिन जब से फोन कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ फासा फिरौन रसूल से मुराद क्या होता है? आप बौखलाए हुए हैं मौलाना साहब, आप बौखलाए हुए हैं। तुम कितना जलील इंसान होगा, कुत्ते से भी गया हुआ है, कुरान का मफहूम मालूम नहीं तेरे को। मैं कहता मैं आम इंसान हूँ ना मौलाना साहब, मैं तो आम इंसान हूँ। हालांकि आप जो मुझे फोन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि तूने हमारी जो किताबें दिखाई हैं, क्यों दिखाई हैं? आप जब मैं कहता हूँ कि हाँ चलो अच्छा तुम्हारी किताबों को मैंने जवाब दिए तो आप भाग रहे हैं। आप कर रहा हूँ मुद्दे के ऊपर मैं बहस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाग रहे हैं मौलाना साहब, आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अगर तुम राह फरार इख्तियार कर रहे हैं मौलाना साहब, जाहिल, तुम्हारे बस की बात नहीं है, बात करोगे। चलो जाओ यार, इतनी बेइज्जती काफी है।